Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Introduction to Computing and Programming class. Today we are going to cover lecture number 9, in which we are going to talk about output formatting. That means how we are going to display the same output in different manners, right? So basically, what is formatting output? So formatting output means the cout object provides way to format data as it is being displayed. That means so basically we have a console window, that is a black window or output window in front of a user. So that comes because of the cout, and whatever we write after cout statement is displayed on that screen. So formatting output means the different styles or different ways of formatting the same data. Okay, like you can see in this example that the number 720 is written in different ways, like 720, 720.0, 720.000. No matter how many zeros you may add, the number remains same. 7.2 exponent 2, or plus 720 plus 720.0. So these are the same things written in different ways. This is called formatting. That means different styles of writing the same thing, right? So this thing can be achieved by using the different formatting commands present inbuilt in the C++ language. And like we have used math.h library for the inbuilt mathematical operators or mathematical functions. Same wise we have iomanip, that is iomanip library used for different commands for output formatting. And iomanip means I input, O output, manip means manipulator. So basically this is called manipulation, right? Manipulation means to have a different way of representing the same thing. ठीक है, एक ही चीज़ को दूसरे अंदाज में show करना. This is called manipulation or manipulator. The functions will be called as manipulator, and the definition of those functions will be present inside this library. So to use those formatting commands or functions, we will have to include this library. Okay. So after this, let's talk about so basically we have a lot of mathematical formatting. Basically we have a lot of formatting commands, and some of the most commonly used formatting commands are these shown. First is set w bracket n, second is show point, third is fixed, then set precision, left and right. So we are going to talk about each one of them one by one. Okay, so the first one is set wn. Set w means set the width of, and n means how many digits width we want to set. ठीक है, इसको हम दोबारा से सही से एक्सप्लेन करते हैं. set w offers a way of specifying the minimum number of spaces to use for each number. ठीक है, जैसे हम लोग ने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ देखी हुई हो कि जब हमारे पास हम लोग कोई चीज़ जब डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास जब आउटपुट आता है तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ पर हमारी ब्लैक विंडो की स्क्रीन जो स्टार्ट हो रही होती है, वहाँ से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है. ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हमने कोई स्पेस दी हुई हो, कि हमने कोई एंडल की कमांड डाली हुई हो फॉर द न्यू लाइन, फॉर द एनीथिंग लाइक दैट, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमारा कर्सर जो होता है वो मूव होता रहता है. बट आर कर्सर ऑन द black window starts where our black screen is starting. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप ओवर हियर इज cout इफ द सिंपल एग्जांपल हेलो वर्ल्ड. ठीक है, सिंपल, जैसे हम लोग ये लिखते हैं. ठीक है, और हम लोग इसको प्रिंट करते हैं. ठीक है, रन करते हैं. ओके, सो जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हेलो जो है वो एच यहाँ से लिखना शुरू हुआ जहाँ से हमारी स्क्रीन स्टार्ट हो रही है कर्सर. ठीक है, उसके बाद उसने पूरा लिखने के बाद वो प्रोग्राम जो था वो ख़त्म हो गया. अब अगर हम फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि अगर हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा हेलो है ये यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करे, बल्कि जो है वो कुछ स्पेसेस के बाद शुरू करे, और कुछ इस तरह से, मतलब कुछ हम चाह रहे हैं यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई सेट टू यू दैट यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट. आप लोग को एक रिपोर्ट बनानी है, एक टेबल बनाना है, जिस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं, जिसमें मुझे स्टूडेंट्स के नाम, उनके रोल नंबर और उनके ग्रेड्स जो हैं वो लिखने हैं.
तो मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं क्या सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करती हूँ, कॉलम्स डिफाइन करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम विल बी फॉर नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, थर्ड कॉलम विल बी फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द स्टूडेंट्स, एंड द फोर्थ वन विल बी फॉर द ग्रेड्स, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाने के लिए हम लोग जब हम लोग वर्ड में भी या फिर हम लोग एक्चुअल हम लोग किसी नोटबुक में भी जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो हम लोग हर कॉलम की एक जगह स्पेसिफाई करते हैं कि ठीक है, दिस कॉलम कंटेन्स सीरियल नंबर, सो सीरियल नंबर विल बी है, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में अंडर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हर अंडर 100 है तो इसका मतलब है कि सीरियल नंबर जो होगा वो 1 से स्टार्ट होकर टिल मैक्सिमम 99 तक जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि 2 डिजिट्स मैक्सिमम हमारे पास सीरियल नंबर के कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीरियल नंबर का जो कॉलम होगा उसकी विड्थ में सबसे कम रखूँगी। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर एग्जांपल किसी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 7 डिजिट्स पर कंसिस्ट करता है, तो 7 डिजिट का मतलब है कि उसके लिए मैक्सिमम मैं मिनिमम मैं 7 डिजिट स्पेस छोड़ सकती हूँ और मैक्सिमम मैं जितनी मर्जी चाहिए उसको उस कॉलम को वाइड कर सकती हूँ, लेकिन मिनिमम 7 डिजिट स्पेस मुझे उस कॉलम के लिए छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर नेम आएंगे, तो नेम के लिए थोड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स का नाम ज़्यादा बड़ा होता है तो मैं 15 डिजिट और 30 डिजिट्स जो है वो स्पेस छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद ग्रेड क्योंकि नंबर्स होते हैं तो मैं जो हूँ उसके लिए 3 to 4 डिजिट स्पेस छोड़ दूँगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग इज बेसिकली दिस इज आई एम डिफाइनिंग द स्पेस ऑफ ईच कॉलम और ईच वेरिएबल डाटा, ठीक है। हर डाटा के लिए मैं स्पेस ऑलरेडी डिफाइन कर रही हूँ और फिर उसी स्पेस के अंदर वो डाटा जो है वो लिखा जाएगा। So this is done with the help of the command output formatting command called as setw. setw क्या करता है, स्पेस छोड़ देता है और फिर उस स्पेस जब वो छोड़ी हुई होती है वहाँ पर अपना डाटा जो है वो लिखता है, ठीक है। जैसे अब इसकी मैं एग्जांपल शो करूँ, इसको लिखते किस तरह से हैं। लेट मी जस्ट लुक एट द स्लाइड्स इफ यू हैव एनीथिंग एल्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी प्रोग्राम को जो है वो रन करके दिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये प्रोग्राम अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इस प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स डिफाइन हुए हुए हैं और उनकी वैल्यूज़ भी डिफाइन हुई हुई हैं, ठीक है। यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि इन्होंने क्या कहा हुआ है कि सबसे पहले डिस्प्ले द फर्स्ट रो ऑफ नंबर, पहली रो नंबर की डिफाइन की जाए। तो अब इसमें क्या किया है, मैनुअली स्पेस जो है वो डिफाइन की, यानी कि एक ही रो है जिसमें 3 नंबर जो हैं वो लिखे हुए हैं लेकिन विद द मैनुअल स्पेसिंग। मैनुअल स्पेसिंग किस तरह से दी हुई है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे लिखा हुआ है सी आउट नंबर 1, यानी कि नंबर 1 यहाँ पर डिस्प्ले होगा और फिर एक डिजिट की स्पेस दी हुई है, फिर नंबर 2 डिस्प्ले किया हुआ, फिर एक डिजिट की स्पेस और फिर नंबर 3, यानी कि फर्स्ट रो विल बी वेरी मच प्रेजेंटेबल। देन कमिंग टू द सेकेंड, फिर एंडल के बाद सेकेंड रो आएगी। सेकेंड रो में क्या है, पहले नंबर 4 है, फिर स्पेस, फिर नंबर 5, फिर स्पेस, फिर नंबर 6। अब यानी कि ऊपर भी सिमेट्री सेम थी और नीचे भी सिमेट्री सेम है, हर नंबर के बाद एक एक डिजिट की स्पेस दी हुई है, जैसे ऊपर दिया हुआ था वैसे नीचे दिया हुआ है। और फिर उसके बाद थर्ड रो है, थर्ड रो में नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 एंड ईच ऑफ देम हैविंग वन डिजिट स्पेस बिटवीन देम। अब अगर हम इमेजिन करें तो ये डिस्प्ले कैसे होगा कि पहले फर्स्ट नंबर डिस्प्ले होगा और फिर इक्वल, मतलब एक कॉलम बन जाएगा फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट नंबर 1, 4, 7 का एक कॉलम बनेगा, फिर दूसरा कॉलम बनेगा 1, 2, 5, 8 का और फिर तीसरा कॉलम बनेगा 3, 6, 9 का। तो ये तीनों को इस तरह से अलाइंड कॉलम बन जाएंगे बिल्कुल। तो लेट्स सी इफ इट हैपेंस और नॉट। हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, ये दो ओके अब तो अभी हम अगर हम देखें तो अब हमने जो इमेजिन किया था कि एक डिफाइंड 3 रोज 3 कॉलम्स बन जाएंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखें बिल्कुल एक ना अनसिमेट्री जो है वो नज़र आ रही है। ऑल्दो एक एक स्पेस ही गिवन है
इसके बाद एक स्पेस, इसके बाद एक स्पेस, इसके बाद एक स्पेस। वो क्यों ऐसा हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज़ाहिर है एक नंबर जो था वो बड़ा था और एक नंबर छोटा था, किसी का नंबर कुछ बड़ा है किसी का छोटा है, तो डैट मीन्स देयर वाज नो अलाइनमेंट, यानी कि इन नंबर की कोई अलाइनमेंट नहीं हुई हुई। और ये कोई एक पर्टिकुलर जैसे कॉलम बने हुए होते हैं ना, वो एक अलाइंड कॉलम्स नहीं बने हुए आ रहा है। सो हम मैनुअली स्पेसिंग देने से अब हमें समझ भी नहीं आता। फिर हमें अगर अलाइंड स्पेसिंग देनी है तो हमें काउंट करना पड़ेगा, चाहिए 4 नंबर है तो उसके बाद इतने, तो दैट वुड बी वेरी हेक्टिक, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, वी विल यूज़ दिस कमांड सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू क्या करेगा कि हर नंबर के लिए, हर कॉलम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर देंगे, नंबर ऑफ डिजिट की स्पेस जो है वो डिफ़ाइन कर देंगे, और फिर वो डिजिट तो होगा वो उसी वो जो डाटा होगा वो उसी स्पेस में लिखा जाएगा, उस स्पेस से वो पहले नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस नंबर 1 के लिए मैं अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो है वो नंबर मेरे कितने बड़े बड़े हैं, 2897, यानी कि मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर है मेरे पास। तो मैं स्पेस जो होगी उससे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक कॉलम के लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं नेम, रोल नंबर और सीरियल नंबर वगैरह के लिए अगर मैं कॉलम डिफ़ाइन कर रही हूँ, तो मैं जितना मेरा मिनिमम नंबर ऑफ़ डेटा होगा उससे या तो उतना ही स्पेस रखूँगी या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा रख दूँगी, ताकि वो ईजीली एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो जाए, थोड़ा गैप गैप के साथ डिस्प्ले हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 4 डिजिट नंबर है, ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट नंबर है। तो मैं जो स्पेस छोड़ूंगी हर कॉलम के लिए वो 6 डिजिट नंबर छोड़ दूंगी, ताकि स्पेसिंग जो हो वो इक्वल स्पेसिंग हो। मर्जी है 5 भी छोड़ सकती हूँ। 4 अगर छोड़ूंगी तो 4 से ही होगा ये कि 2 नंबर 2 कॉलम के मर्ज हो जाएंगे, साथ में मिल जाएंगे आपस में, तो कोई डिस्टेंस, कोई गैप नहीं रहेगा। So that's why I'm having the having the space of 6, ठीक है। तो अब वो सेट डब्ल्यू कमांड डालने का तरीका क्या है हमारे पास, कि हम लोग इन्हीं ऑपरेटर्स से हम लोग सेपरेट करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर्स एंड देन सेट डब्ल्यू, ठीक है, देन ब्रैकेट एंड देन 6, यानी कि मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस वेरिएबल, इस डेटा के लिए जो नंबर 1 का जो डेटा होगा उसके लिए मैंने 6 डिजिट स्पेस जो थी वो असाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो मैं, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके लिए भी सेम काम करूँगी, सेट डब्ल्यू 6, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। एंड देन इवन आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू यूज दिस एंड देन सेम विल बी डन ओवर हियर। यहाँ पर भी सबके साथ मैं यही करूँगी। यहाँ पर ये रह गया था, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, now I'm going to run this. Okay, now so it is giving me error. The error says set w was not declared in the scope file because I didn't add the library which has the definition of this set w manipulator. So I'm going to add the library. इसको library को मुझे भी ज़रूरत नहीं है math.h की, so I'm going to delete it. And then I'm going to add the library required for the output manipulators. Include #include iomanip, #include iomanip. Okay, now I'm going to run this. Okay, so it is giving me error. What kind of error is this? Okay, so it has these operators. Running again. ओके, अब आप देखें कि हमारे पास डेटा जो है वो किस तरह से अलाइन हो गया। नाउ लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग।
अब हमारे पास ये सेट डब्ल्यू कमांड काम कैसे करती है, ठीक है। हमारे पास ये जो सेट डब्ल्यू कमांड होती है ये करती क्या है कि जितने भी डिजिट लिखे हुए हों, सेट डब्ल्यू यहाँ पर एन की जगह जो भी नंबर लिखा हुआ, कोई इंटीजर वैल्यू लिखी होनी चाहिए, कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, कोई इंटीजर वैल्यू। सो जितनी भी लिखा हुआ उतनी स्पेसेस ये रिजर्व कर देता है। फॉर एग्जांपल 6 लिखा हुआ तो इसने 6 स्पेसेस जो थी वो रिजर्व कर दी। एंड देन whatever the data after this will be written, after the setw command, whatever the data will be written, it will start writing that data from the end of the of this 6 of this spaces। जैसे यानी कि एक इसने सेल जो था वो इसके लिए डिफाइन कर लिया। जैसे हम एक्सेल में हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, तो समझ लें ये एक सेल की विड्थ को डिफाइन कर देता है, ठीक है। और फिर इसने सेल की विड्थ को डिफाइन कर दिया। एंड देन आफ्टर जो भी डाटा होगा वो लिखना कहाँ से शुरू करेगा, आखिर से, यानी कि 6 नंबर से लिखना शुरू करेगा, 6 5 4 एंड देन 3, और फिर जो 2 स्पेसेस बच गई थी उसको खाली छोड़ देगा, यानी कि आखिर से ये लिखना स्टार्ट करता है। फिर अगेन इसके बाद दोबारा 6 डिजिट स्पेस खाली थी, 6 डिजिट, और फिर आखिर से लिखना शुरू किया। नंबर एक ही था तो उसने एक ही लिख दिया। फिर दोबारा 6 डिजिट स्पेस खाली थी तो आखिर से इसने नंबर लिखना शुरू किया, 6 5 6 5 4, और उसके बाद 3 2 1 खाली, ठीक है, 3 डिजिट्स स्पेस खाली। सो इसका मतलब क्या होगा कि हर सेल की विड्थ डिफाइन करता है, और फिर जो भी डाटा इसने लिखना होता है उस सेल के अंदर वो उसके आखिर से लिखना शुरू करता है। सो दिस इज हाउ दिस कमांड सेट डब्ल्यू वर्क्स, ठीक है। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स द स्लाइड्स, so this is how they have corrected the program. I have already told you that. So let's just read it out. The total number of okay, now there is another type of manipulator output formatting command that is called as set precision, bracket n. set precision क्या करता है, set precision ये करता है हमारे पास कि हमारे पास सबसे पहले सेट प्रिसिजन को की कमांड काम कैसे करती है उससे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हमारे पास अगर कोई भी न्यूमेरिक डेटा परफॉर्म हो, न्यूमेरिक डेटा हो हमारे पास, उसमें हमारे पास कुछ कभी कभी कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स होता है, और कभी कभी कुछ नंबर्स जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू राइट 20, सो आई राइट 2 0, यानी कि 0 आफ्टर सम नॉन ज़ीरो नंबर it will be considered as a significant number, ठीक है। इस तरह से अगर 0 को मैं 2 से पहले लिख दूंगी तो that 0 will become now the non-significant number. So that means so this is how we call a significant number, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है। सो बेसिकली सेट प्रिसिजन क्या करता है, सेट प्रिसिजन अगर हमें सेट करना हो कि ओके दिस नंबर ऑफ significant digits should appear in my data, then I am going to if I want to control this thing, कि अगर मुझे कंट्रोल करना है कि इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो थे होंगे वो सिर्फ अपीयर हो, उसके बाद उससे ज़्यादा ना हो, तो इस तरह का काम जो है वो मैं सेट प्रिसिजन की कमांड से कर सकती हूँ। सो लेट्स रीड इट। टू कंट्रोल द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट अपीयर बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। टू कंट्रोल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स with which a floating point values are displayed by the set precision manipulator is used, ठीक है। तो set precision को मैं किस तरह से यूज़ करूँगी, जब मुझे कंट्रोल करना हो कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो डिस्प्ले हों किसी नंबर में, ठीक है। सो दिस इज हाउ, सो टू डू दैट आई कैन यूज़ set precision command. Remember that set precision और set w में फ़र्क ये है कि set w can be used for both numeric data as well as the string data, जबकि जो मेरे पास सेट प्रिसिजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा में यूज़ होगा। इसकी मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि सेट डब्ल्यू की कमांड यूज़ करते हुए हमने नंबर्स को अलाइन कर लिया था। इस तरह से हम स्ट्रिंग या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को भी अलाइन कर सकते हैं यूजिंग द सेट डब्ल्यू कमांड, ओके। बट द सेट प्रिसिजन कमांड विल ओनली बी यूज फॉर द न्यूमेरिक डेटा, दिस कैन नॉट बी यूज फॉर द string data type. I'm going to show you that how this set w command can be used for string data as well. For example ये 3 मेरे पास रोज थी, तो फॉर एग्जाम्पल इनका मुझे हेडर अगर डालना है तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, going to copy and then
do, I'm going to like series like first and then second. So this is string, it's first, second, okay, and then ठीक है, let's run this again. ओके नाउ सो यू हैव सीन कि setw की कमांड जो थी वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा पे नहीं बल्कि स्ट्रिंग डेटा पे भी यूज़ हो सकती है setw की कमांड, लेकिन set precision की कमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा पे ही यूज़ हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू. Then after this, I'm going to do this again. Okay, now talking about set precision again. So set precision command basically works for numeric data only, and it is used to control the how many numbers should be displayed on the screen as a significant digit. ठीक है, significant digit की कितने significant digit appear होंगे स्क्रीन पर, ये उस चीज़ को कंट्रोल करती है. ठीक है, so let's just look at this example. Let me just copy this example and write it. Okay, so what is happening in this example is that कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, quotient number 1 and number 2. number 1 एक वेरिएबल है, number 2 एक वेरिएबल है, and then quotient is assigned the value of number 1 divided by number 2. ठीक है, यानी कि number 1 जो है वो number 2 से डिवाइड हो रहा है, जो भी आंसर आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखें जो डिस्प्ले होगी वो है सी आउट quotient एंडल, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर आएगा नंबर 1 को नंबर 2 के डिवाइड करने के बाद वो पूरा का पूरा जितने भी डिजिट्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव यूज्ड दिस आउटपुट फॉर्मेटिंग कमांड सेट प्रिसीजन नंबर 5. इसका मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 डिस्प्ले हों, 5 से ज़्यादा डिस्प्ले ना हो. Then after this we have cout set precision 4, यानी कि 4 significant digits appear हो. Then after this we have cout set precision 3, quotient, यानी कि quotient के सिर्फ और सिर्फ 3 significant digit appear हो, and then 2 and then 1. ठीक है, समझ गए? Okay, let's see what will be the result. Let's just run this. ओके, सो नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमारे पास फर्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो सी आउट की फर्स्ट स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन क्या थी कि क्वोशंट की जितने भी हमारे पास क्वोशंट आंसर है वो हमारे पास एज इट इज़ अपीयर हो जाए. सो नाउ यू कैन सी दैट दिस आंसर इज़ अपीयर्ड. ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंट्रोल्ड नहीं थे, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ रहे हैं, दिस. सो वी वांट टू चेक कि क्या इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने के बाद इतना यही आंसर आएगा या नहीं आएगा. लेट्स जस्ट सी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू use the calculator to see the actual result. So it is like 132.364 divided by 26.91. ठीक है, so let's see what's the answer. Okay, so the answer is quite bigger than what is actually shown. हालांकि यहाँ पर जो हम लोगों ने कमांड इंस्ट्रक्शन लिखी थी वो क्या लिखी थी, सी आउट क्वोशंट, यानी कि कोई सेट प्रिसीजन की कमांड यहाँ पर नहीं यूज़ की थी. उसका मतलब था कि इसको एज इट इज़ जितने भी ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे वो एज इट इज़ शो होने चाहिए थे सारे के सारे, लेकिन सारे नहीं शो हो रहे हैं. मतलब कितने शो हो रहे हैं, लेट्स जस्ट काउंट कितने शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 शो हो रहे हैं.
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम सेट प्रिसिजन की कमांड ना लगाएं और सिर्फ ऐसे ही किसी भी नंबर को डिवाइड करके कोई भी नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाएं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू डोंट यूज़ द सेट प्रिसिजन कमांड, देन बाय डिफ़ॉल्ट इट ओनली शोज़ द 6th नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, आई रिपीट, अगर हम लोग कोई भी सेट प्रिसिजन की कमांड ना लगाएं और आंसर जो है वो डिस्प्ले करवाएं किसी भी नंबर का, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो शो करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भाई 6 की बजाय हमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट दिखाओ, तो वो देखें ये नेक्स्ट कमांड हम लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बाय यूजिंग द सेट प्रिसिजन कमांड। सो नाउ इट इज़ शोइंग अस द 5 सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, और बाकी को उसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, ये देखें 7 की बजाय वो 7 की बजाय वो 8 हो गया है। ठीक है, इस तरह से 8 की बजाय वो 9 हो गया है। 2 की बजाय वो 9 ही रहा। ठीक है, 4.9 की बजाय वो 1 हो गया, जहाँ पर सेट प्रिसिजन 1 था, यानी कि एक सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए था, तो वो राउंड ऑफ होकर 1 हो गया। तो इस तरह से पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो उसको राउंड ऑफ करके जितने भी रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट सेट प्रिसिजन की कमांड के बाद नंबर लिखा हुआ होगा, उस नंबर पर वो सिग्निफिकेंट डिजिट सेट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो शो करे, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 6 की बजाय हमें 7 दिखाए, तो हम यहाँ पर लेट से लिख देते हैं, ये 2 की बजाय मैं इसको 7 कर देती हूँ। ठीक है, 7, या फिर मैं इसको 8 कर देती हूँ, ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट दिखाए। ओके, तो अब आप ये देखें, ये देखें कि हमें यहाँ पर 8 था, तो हमें 8 सिग्निफिकेंट डिजिट दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर जितना हमें, जहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही 6 दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली थी, सेट प्रिसिजन नहीं डाला था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 दिखा रहा था। अगर हम डाल देते हैं कि 6 फिर 8 दिखाओ, तो वो ज़्यादा दिखा देगा। ठीक है, सो दिस इज द पर्पज ऑफ सेट प्रिसिजन कमांड, इट सेट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू बी displayed on the screen. ठीक है, so this was the function. Let's just look into the other things being said. Okay, so now you have seen if the value of a number is expressed in fewer digits in the precision, then the specified set precision manipulator will have no effect. यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि अगर हम लोगों ने डिज़ायर्ड जो नंबर होंगे, यानी कि हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा, अगर वो छोटे नंबर पे कंसिस्ट करता होगा और सिग्निफिकेंट डिजिट सेट प्रिसिजन में हम लोगों ने एक बड़ा नंबर को सिग्निफिकेंट का दिया हुआ होगा, तो देन एट दैट टाइम सिग्निफिकेंट डिजिट विल हैव नो इफेक्ट। जैसे हम यहाँ पर अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक्चुअल नंबर इज 21। ठीक है, यहाँ 21 हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 and 1, एक मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर लेकिन सेट प्रिसिजन की कमांड मैनिपुलेटर जो हमने लगाया वो लगाया 5 डिजिट्स का। देन ऑफ कोर्स अब क्योंकि ज़्यादा उसके पास नंबर है ही नहीं इतने सिग्निफिकेंट डिजिट, तो क्या करेगा वो तब सिग्निफिकेंट सेट प्रिसिजन की जो कमांड होगी वो इग्नोर हो जाएगी और जो नंबर होगा वो ही नंबर शो हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इससे बात वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब 5 उसके सिग्निफिकेंट डिजिट है ही नहीं, तो वो कहाँ से शो करेगा। ठीक है, जितने नंबर हैं वो उतने ही शो करेगा। सही, सो दिस इज़ अगेन द सेम कि अब जितने हैं एक्चुअली उतने ही सेट प्रिसिजन कमांड है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उतने एज इट इज़ शो होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें इतने सारे नंबर्स थे, सेट प्रिसिजन कमांड लगाई और हमारे पास इतने यहाँ पर। ठीक है, ये बाकी सब चीज़ें राउंड ऑफ हो जाएंगी, 8 राउंड ऑफ होकर जो है वो 3 बन जाएगा, तो 4.3 विल बी 34। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारे पास अगर यहाँ पर राउंड ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ राउंड ऑफ नहीं होता, अपनी ज़रूरत पड़ गई, यहाँ पर सेट प्रिसिजन कमांड की कोई फ़ायदा नहीं हुआ और यहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है,
So this is how it works. Now it says that set wn and set precision can both be used in the same program. दोनों को हम सेम प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका, क्योंकि सेट w का पर्पस अलग होता है और सेट प्रिसीजन का पर्पस अलग होता है. तो ऑफ कोर्स दे बोथ कैन बी यूज्ड इन द सेम प्रोग्राम एज वेल. ठीक है, जितने मैनिपुलेटर्स होते हैं वो सबको हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. एंड देन आफ्टर दिस all the data after adding set w set precision n will be converted. So set precision can be just added once. So there is one other thing कि हमारे पास जिस तरह से हम लोग set precision set w में हम लोग हर बार set डेटा के सामने हमें हर बार set w बार बार लिखना पड़ रहा था. Unlike this set precision को अगर हम एक बार ही लिख देंगे तो जितना भी डेटा will after this set precision written, जितना भी डेटा होगा वो सब उसी वैल्यू पर सेट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि बहुत सारा मल्टीपल डेटा मेरे पास आ रहा है और उन सब डेटा की मुझे सेट प्रिसीजन वैल्यू एक ही चाहिए, दैट से 5. ठीक है, तो मुझे बार बार सेट प्रिसीजन 5 बिफोर एवरी डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं सिर्फ एक ही बार लिखूँगी और जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा सेट प्रिसीजन 5 में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट मी शो यू दिस. जैसे फॉर एग्जांपल ओके, तो अब ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो सेट प्रिसीजन डाला नहीं था, तो यानी कि जो क्वेश्चन एक्चुअल होगा आंसर वही आ जाएगा विद रिक्वायर्ड डिफॉल्ट 6 सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर. ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में ये होगा कि यानी कि 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स शो हो रहे होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम सेट प्रिसीजन ना डालें तो वो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखाता है. देन व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में मैंने सेट प्रिसीजन की वैल्यू 5 डाली और क्वेश्चन को डिस्प्ले किया. ठीक है, अब वो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो शो करेगा. फिर उसके बाद मैंने दोबारा क्वेश्चन को जो है वो लिखा है लेकिन विदाउट सेट प्रिसीजन. तो अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इस सेट प्रिसीजन के बाद लिखा है और विदाउट, हालांकि ये कमांड और ये कमांड सेम है, लेकिन क्योंकि ये वाली कमांड जो है वो इस सेट प्रिसीजन के बाद लिखी हुई आ रही है, तो इसका मतलब है कि इस कमांड में यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में वो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो शो करेगा. क्योंकि सेट प्रिसीजन में की खास बात ये है कि उसको जब आप लिख दो तो उसके बाद वो जितना भी डेटा होता है वो उस सब को उसी सेट प्रिसीजन की वैल्यू पर सेट कर देता है, जब until and unless another set precision comes with some different value. ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन ये चारों क्वेश्चन जो होंगे, क्योंकि ये सेट प्रिसीजन के बाद सारे आ रहे हैं, ये भी, इन सब की जो वैल्यू होगी सिग्निफिकेंट डिजिट की वो 5 होगी. ठीक है, until another significant digit significant precision another set precision command comes with another significant digit number. ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं. तो ये देखें, नाउ यू कैन सी कि पहले क्योंकि कोई भी नहीं लिखी हुई थी सेट प्रिसीजन की कमांड, तो इस कमांड के बाद इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखाए. फिर उस कमांड के बाद सेट प्रिसीजन वैल्यू 5 लिखी और उसके बाद 1 2 3 4 4 बार क्या किया हुआ है, 1 2 3 4 4 बार जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है. तो ये देखें 1 2 3 4 4 बार जो है वो इसने 5 सिग्निफिकेंट डिजिट ही शो किए हैं, unless another significant set precision comes with some other significant number. ठीक है, तो हम एक ही बार सेट प्रिसीजन को लिखेंगे और वो सारी स्क्रीन उसके बाद जितने भी आउटपुट्स होंगे उन सबको उसी प्रिसीजन वैल्यू पे सेट कर देगा. ठीक है, ये देखें, एक बार लिखा, उसके बाद जितने भी हैं सबको उसने उसी सिग्निफिकेंट वैल्यू पे सेट कर दिया. ठीक है, until unless another set precision comes with some other value. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन. लेकिन यही चीज़ सेट डब्ल्यू में ये नहीं होती. सेट डब्ल्यू में आपको हर बार सेट डब्ल्यू लिखना ज़रूरी होता है, सेट प्रिसीजन में अलबत्ता ये नहीं होता. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. ओके, सो अनदर टाइप ऑफ आउटपुट फॉर्मेटिंग टूल, आउटपुट फॉर्मेटिंग फंक्शन इज कॉल्ड फिक्स्ड. फिक्स्ड हमारे पास करता क्या है, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमारे पास समटाइम्स हमारे पास जो आंसर आता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में. जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये देखें कि हमारे पास जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में. क्यों कन्वर्ट हुआ ये, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट की सेट प्रिसीजन की जो वैल्यू रखी हुई थी वो 2 रखी हुई थी
और जो नंबर था वो बहुत बड़ा था, वो राउंड ऑफ भी नहीं हो सकता था, ज़ाहिर है 123 जो है वो राउंड ऑफ नहीं हो सकता। यहाँ पर ये वाले सब तो राउंड ऑफ हो जाएंगे, 123 बच जाएगा। लेकिन जो यानी कि ये भी राउंड ऑफ हो गया, ये भी राउंड ऑफ हो गया, ये भी राउंड ऑफ हो गया पॉइंट्स के बाद वाले, लेकिन पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। 123 को हम राउंड ऑफ करके 124 नहीं लिख सकते। सो वॉट एवर इट विल डू टू हैव द नंबर टू हैव दिस सेट प्रिसिजन वैल्यू टू, इसको अचीव करने के लिए क्या करेगा, ये उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये नंबर इसने बना दिया 1.2 एक्सपोनेंट 2, ठीक है, एक्सपोनेंट 2 बना दिया इसने। तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये 120, ये नंबर जो है वो 120 बन जाएगा, ठीक है। तो 120 इज़ फार मोर नियर देन 12 ओनली, ठीक है। अगर सिर्फ 12 नहीं लिखा है इसने, 120 लिख दिया है, 1.2 एक्सपोनेंट 2 लिख दिया है, जो इसको मैक्स में कन्वर्ट करें तो 120 बनता है, सही है। सो बेसिकली अगर लेकिन हम चाह रहे हों कि भाई हम अपना डेटा जो है वो किसी भी सूरत में साइंटिफिक नोटेशन में नहीं चाहते, आपने कैलकुलेटर में अक्सर देखा होगा कि हमारे पास अक्सर जो रिजल्ट आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में वो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होकर आ जाता है। लेकिन अगर हमें उसको कन्वर्ट दोबारा करना हो तो एक की होती है, अगर हम प्रेस करें तो वो नंबर दोबारा से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इन डेसिमल नंबर्स, ठीक है। सो अगर हम इसको भी साइंटिफिक नोटेशन से हटाना चाहते हैं, अगर कोई भी ऐसा डाटा हो हम चाह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कभी भी रिजल्ट ना आए, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो कहलाती है फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या करती है, फिक्स्ड होती है अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए तो उसको फिक्स कर देती है इन द नॉर्मल डेसिमल फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ फिक्स्ड नोटेशन, लेट्स जस्ट रीड इट आउट। सो ओके, सेट प्रिसिजन कन्वर्ट्स अ नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन व्हेन द प्रिसिजन वैल्यू इज स्मॉल एंड द नंबर इज बिगर। प्रिसिजन वैल्यू कम है, नंबर जो है वो बिगर है, ठीक है। फिक्स्ड फोर्सेस सी आउट टू प्रिंट द डिजिट्स इन फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन में शो करे, और डेसिमल इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में ना शो करे, फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन में उसको वो शो करे, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर यहाँ मैं फिक्स्ड लिख दूँ और सेट प्रिसिजन भी लिखा हुआ है और फिक्स भी आगे लिख दूँ तो किसकी सुनी जाएगी। सेट प्रिसिजन कह रहा है सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों, फिक्स्ड कह रहा है कि भाई जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं जाएगा। अब सेट प्रिसिजन की वैल्यू भी कम है, साइंटिफिक नोटेशन में भी नहीं लिखना, तो क्या करें, आंसर क्या 12 लिखते, नो। इन दैट सिनेरियो ऑफकोर्स अगर हम 123 को हम 12 नहीं लिख सकते, 12 के इक्विवेलेंट नहीं कह सकते, 120 वो कुछ और कह सकते हैं लेकिन 12 नहीं कह सकते। 12 एंड 120 both are very different. So in that particular scenario set precision जो होगा वो इग्नोर हो जाएगा एंड फिक्स्ड विल बी डोमिनेंट, ठीक है। फिक्स्ड की बात मानी जाएगी, सेट प्रिसिजन की बात नहीं मानी जाएगी। इस सिनेरियो में सेट प्रिसिजन जो है वो इग्नोर हो गया। तो ये देखिए आंसर आपका 123.46 ही आया है, ठीक है। लेकिन सेट प्रिसिजन अभी भी फुली इग्नोर नहीं होगा। सेट प्रिसिजन अब क्या होगा, सेट प्रिसिजन पहले कैसे देख रहा था, पहले वो पूरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट कर रहा था, 1 2 3 4 5 6। अब सेट प्रिसिजन जो है वो काम करेगा, वो पॉइंट के डेसिमल के बाद वाले नंबर्स के ऊपर काम करेगा, यानी कि अब वो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसिडर करेगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसिडर करेगा। जैसे यहाँ पर सेट प्रिसिजन 2 लिखा हुआ था तो अब वो इनको नहीं देखेगा क्योंकि इसको इसने वैसे ही वैसे लिख दिया। अब जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स होंगे वो उसको कंट्रोल करेगा। अब वो उनको दो यहाँ पर 2 है तो सेट पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर डिस्प्ले हों, बाकी राउंड ऑफ हो जाएगा, सही है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइट फिक्स्ड एंड सेट प्रिसिजन बोथ टुगेदर, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग व्हिच वी यूज्ड इन फिक्स्ड नोटेशन। ओके, नाउ अगेन दिस इज शो पॉइंट। शो पॉइंट क्या करता है, शो पॉइंट बेसिकली हमारे पास जो है कि अगर शो पॉइंट मीन्स एज द नेम सजेस्ट टू शो द पॉइंट, इवन इफ देयर इज नो पॉइंट, इवन इफ देयर इज अ होल नंबर, दिस हैज टू शो द पॉइंट, ठीक है। लेट्स जस्ट रीड, बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नॉट डिस्प्लेड विद द ट्रेलिंग जीरो, यानी कि जो फ्लोटिंग पॉइंट अगर फॉर एग्जाम्पल पास नंबर जो है वो 123.0 है तो जो डिस्प्ले होता है वो 123 होता है, 0.0 नहीं डिस्प्ले होता। So to do that what we do is we just if we want to have the number shown like 0.0 something तो उसके लिए we have to use this show point function, ठीक है। तो अब यानी कि for example if we have this
if we have some number like a or not this a comma b for the easy. Okay, so a is assigned the value of 12.0. if I want to display cout a, ठीक है, अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूँ तो क्या डिस्प्ले होगा? ट्वेल्व डिस्प्ले हो गया, 12 पॉइंट जो था वो ख़त्म हो गया है, सही है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पॉइंट भी नज़र आए तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सिंपली राइट शो पॉइंट, ठीक है, शो पॉइंट लिख दूँगी। नाउ दिस 12.0 विल बी डिस्प्ले एंड देन ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 6 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर दिखा रहा है, ठीक है। 12.000 अगर मैं नंबर चेंज करूँ 124 कर दूँ, लेट्स सी, यस इट इज़ अगेन शोइंग द 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 नंबर्स दिखा रहा है, सही है। So this is how it shows the significant this is how it shows the trailing point, show the show point. Show point means to show the point even if the number does not have any decimal point in it, ठीक है। तो show point का purpose ये होता है हमारे पास। उसके बाद let's just look at this example. This example says cout set precision this and this, the number will show 123.4, यानी कि 1 2 3 4 4 ही नंबर थे तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट तो जाहिर है वो 4 नहीं दिखा सकता। ओके, यानी कि लेट मी एक्सप्लेन कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और जो एक्चुअल डेटा था वो कम था, तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट डिजिट सेट प्रिसिजन की वैल्यू सेट की वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो नंबर एक्चुअल होगा वही शो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद cout y है, तो 456.0 था तो आंसर सिर्फ 456 शो कर रहा है, सही है। लेकिन जब हमने शो पॉइंट ऐड कर दिया तो अब क्या वो दिखाएगा, अब वो 123.400 यानी कि 6 सिग्निफिकेंट दिखा रहा है, और यहाँ पर भी सेम 456.000, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, रियली सिंपल, जस्ट शो द पॉइंट इवन इफ देयर इज नो पॉइंट, ओके। लेकिन अगेन रिमेंबर इफ यू यूज द इफ दिस a and b and if this a is shown in integer value, let's say अगर मैं यहाँ पर integer a कर दूँ और फिर शो पॉइंट करूँ तो फिर शो पॉइंट का तो फिर ये नहीं दिखाता है, let's see, तो अब देखिए नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि a was integer में वो पॉइंट नहीं लगा सकता, ठीक है। शो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा में, ठीक है। फ्लोटिंग या डबल इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लोट बट विद डबल द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। देन वी हैव द वेरी लेस कॉमनली यूज्ड मैनिपुलेटर्स कॉल्ड एज लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट मैनिपुलेटर क्या करता है और राइट मैनिपुलेटर क्या करता है? तो बेसिकली व्हेन वी यूज़ द setw कमांड हमें पता है क्या करती है, जितने भी हम लोगों ने विड्थ डिफाइन की हुई हो वो उतनी विड्थ जो है वो छोड़ देती है और फिर डाटा जो है वो आखिरी नंबर से लिखना शुरू करती है, जहाँ पर विड्थ जितनी छोड़ी हो उसके आखिर से लिखना शुरू करती है। लेकिन अगर हम setw के साथ लेफ़्ट जो है वो डाल दें, यानी कि लेफ़्ट डाल दें और setw डाल दें, तो ये क्या करेगा, तो ये उतनी स्पेस छोड़ेगा लेकिन आखिर से लिखने की बजाय, सेल के आखिर से लिखने की बजाय शुरू से लिखेगा। यानी कि जब हम लोग वर्ड में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊँ तो ये देखें, ये अलाइनमेंट होती है ना, ये कंट्रोल प्लस एल यानी कि लेफ्ट अलाइन राइट। सो दिस इज बेसिकली लेफ्ट एंड राइट मैनिपुलेटर्स डज दिस फंक्शन, लेफ्ट अलाइन लेफ्ट एंड राइट अलाइन लाइफ। जितनी भी हम लोगों ने स्पेस छोड़ी हुई होगी
लेफ्ट मीन्स वो लेफ्ट अलाइन कर देगा डेटा को, और राइट मीन्स वो राइट की तरफ डेटा को अलाइन कर देगा. सो दिस इज दिस वेरी सिंपल पर्पज ऑफ लेफ्ट एंड राइट मैनिपुलेटर्स. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन. Okay, next we have a summary of set W. Set W establish the point field of n spaces. Fixed displays the floating point. ठीक है, और fixed basically force करता है कि कोई भी अगर scientific notation में conversion हो गई है तो उसको वो floating point numbers में लेकर आए. Show point only works with the floating point data, not with the integer data. And show point means even if there is no point in the data, it will show the point. ठीक है, show point means forcefully point को show करना. सही है, अगर पॉइंट नहीं भी है तब भी, अगर डेटा जो है वो 124 है लेट से, तो इट विल शो इट एज 124.000 हैविंग टोटल नंबर ऑफ 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, उसके बाद सेट प्रिसिजन कंट्रोल्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू बी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन. फॉर एग्जांपल, अगर हम नहीं चाहते कि 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपीयर हो, अगर हम चाहते हैं उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, तो उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं. देन लेफ्ट एंड राइट आर द फॉर द लेफ्ट जस्टिफिकेशन एंड द राइट जस्टिफिकेशन. अगर हम डाटा को, हाँ, अपने लिखी हुई चीज़ को लेफ्ट साइड पे जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट को यूज़ करेंगे, सी आउट लेफ्ट. अगर राइट साइड पे करना चाह रहे हैं तो सी आउट राइट. ठीक है, so this is how all of these manipulators work. It's really simple and easy, but we have to understand it by practicing. So this was about all of these things. So now you will be able to perform lab number 6. I hope so. Allah Hafiz till we meet to the next lab.